Assalamu alaikum. When to begin? Kindly begin when I begin the lesson. Waiting for the others to join. गैरत लोग उस मिनट दे When will people join? 6 p.m. It's 6, more than 6. Just 1 minute remaining in 6. Don't create the waiting room. Let them in, because it's very difficult for me to, admit everyone. I am just not finding the place where. Because admitting all would be very difficult for me to controlling. Now it is the control of allowing people out at your end. So don't create the waiting room. When 100 people, they have to join in. Then they have to be in. आपके पास इसका next आप म्यूट भी कर दें अगर इनको. Please mute your mic. Walaikum assalam. It would eat up the whole time. Should I begin the lesson? Walaikum salam. Yes. You can't hear me? Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين. Assalamu alaikum to all you people who are behind this screen. Alhamdulillah, we are here beginning the program of Talim, giving education to those who are. Professional development has been started. It is 21st century skills. A few rules and regulations of
हम नहीं आ रहे, इसको छोड़ के आए हैं। Please mute your mics. आज शामिर भी उदास है, दोनों मिलके खेलो ना। ये भी लेटा हुआ था, इतनी मुश्किल से इसे मैंने बाहर निकाला। Whose mic is on? चलो कोई बात नहीं, इस टाइम Kindly दोनों mute मिलके your खेलिए। mics. आओगे थोड़ी देर। Kindly mute your mics, girls. Kindly mute your mics. As soon as you join, will you please mute your mic? Yes, please. Let's begin the lesson, that is 21st century skills. 21st century skills. And a few of them we are going to go for. This is my introduction. Master trainer, Mrs. Nahid Arshad, and I am accredited trainer from CPDSO UK. And I have done my degrees from internationally accepted degrees. Am I audible to everyone? Am I audible to everyone? Yes, you are audible. Please continue. If possible, please mute all the participants. I'm not getting the place where to mute all. Because a few people they are not using their mic. Yeah. Yes, please. The objectives of the day, by the end of the session, the attendees will be able to know about the 21st century skills, select a few to adopt. And in the beginning, we are going to have only 4. हम सिर्फ 4 इनमें से देखेंगे कि कौन सी जो है वो बहुत ज्यादा important है और हमारे बच्चे इसको सबको जानते हैं। इनको वो उन बच्चों को पता है और मालूम है और हमें इसमें मास्टर होने की जरूरत है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वालिटीज ऑफ द टीचर्स ऑफ द 21st सेंचुरी वी आर गोइंग टू गो फॉर, कि 21st सेंचुरी के टीचर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सो दैट वी कैन गो फॉर इट। टीचर, ये यूजुअली इंटरैक्टिव जब सेशन होता है तो फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर्स का वो कर लेते हैं। पीपल दे यूजुअली शेयर देयर आइडियाज विद मी, बट ओवर हियर वी हैव टू सी फॉर the thing. Teacher, the role of the teacher is organizer. You can see, let me take the annotation so that it would be clear to you all. Spotlight. The teacher in this 21st century is an organizer, integrator, a librarian. Usually you किताबें भी पढ़ रहे होते हैं, उनको पढ़ के भी सुना रहे होते हैं। लीडर है, उसके अलावा वो पार्टिसिपेंट भी होती है, सुपरवाइजर भी होती है, कोलेटर भी होती है, साथ साथ उसके जो तमाम टीचर्स हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो सारे के सारे कोलैबोरेटर भी होते हैं। ठीक है, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है, जिनको नहीं आ रही वो जरा अपना माइक कुछ चेक कर लें। आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। The teacher is a supervisor, the teacher is a coordinator, the teacher is an informer, motivator, promoter, and technologist. See, a big list. इतनी बड़ी लिस्ट आ गई है 21st सेंचुरी की, और आप ये सब कर रहे होते हैं। तमाम टीचर्स ये काम कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि आपको मालूम नहीं है या आप कर नहीं रहे, यू आर परफॉर्मिंग देम। सिर्फ ये है कि इसको नाम दे दिया गया है कि आप ये सब काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और इसको जारी और सारी रखेंगे 21st सेंचुरी। उसके बाद गुड टीचर जो है इज लाइक अ कैंडल। कैंडल जो है वो अपने आप को कंज्यूम करती है दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए। अगर ये कमाल अतातुर्क का वो है। और टीचर जो है वो कैंडल होती है। और एक जगह मैंने बड़ा अच्छा पढ़ा था कि उसमें ये था कि टीचर जो है इज थिंकिंग इन द नाइट टाइम आल्सो फॉर योर चिल्ड्रन।
पेरेंट्स के लिए था कि अब जाहिर है कि हम जब प्लानिंग कर रहे होते हैं, हम एक्टिविटीज प्लान कर रहे होते हैं, दूसरी चीजें कर रहे होते हैं, तो हम दूसरों के बच्चों के लिए फिक्रमंद होते हैं, अपने वालों के लिए तो होते ही होते हैं, दूसरों के लिए भी फिक्रमंद होते हैं। द टीचर दे हैव टू आस्क देमसेल्व्स कि हम क्या हैं, हु एम आई टीचिंग, हमें किसको पढ़ा रही हूँ। ज़ाहिर है कि यहाँ पे अडल्ट को पढ़ाने वाले भी होंगे और छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले भी होंगे, प्री स्कूलर्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आप ये देखिए कि किन को पढ़ा रहे हैं आप, इसका ख्याल रखना है, एज अप्रोप्रिएटनेस का ख्याल रखना है। व्हाट एम आई टीचिंग, हमें कंटेंट को देखना होता है कि हमने पढ़ाना क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा कंटेंट है, इसमें मुझे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। हाउ विल आई टीच, मैं प्रोसेस पूरा ढूंढती हूँ, देखती हूँ कि इंटरेक्टिव कैसे बनाऊँ, उसको एक्टिविटी बेस्ड कैसे बनाऊँ, उसको अच्छी तरह कैसे करवाऊँ। हाउ विल आई टीच, ये सारे के सारे प्रोसेस में हमारे आ जाता है कि हाउ विल आई नो इफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, कि बच्चों ने ये आ जाता है असेसमेंट, ठीक है, तो ये आ जाता है असेसमेंट। हु एम आई टीचिंग, ग्रेड आ जाता है, एज आ जाती है बच्चों की। व्हाट एम आई टीचिंग, या फिर कंटेंट, टेक्स्ट बुक और कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। और हाउ विल आई टीच, ये आपका प्रोसेस आ जाता है, लेसन प्लानिंग आ जाती है। हाउ विल आई नो इफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, स्टूडेंट्स मेरे उन्होंने समझा है या नहीं समझा है। ये आप देखिएगा कि लेसन के एंड पे जो है वो जरूर हम ये करेंगे, एक रैप अप करेंगे, इससे ये पता चल जाता है कि कितनों को क्या क्या समझ में आया। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। हमें डिफरेंस ड्रॉ करना है कि 20th सेंचुरी में टीचिंग कैसे होती थी, जो हम लोगों ने, जो ट्रेनर्स हैं, जो पुराने लोग हैं, उन लोगों ने किस तरह पढ़ा, 21st सेंचुरी की टीचिंग और लर्निंग कैसी होनी चाहिए। एक चीज तो यहाँ पे फौरन सबसे पहले समझ लेनी चाहिए हम सबको कि जिस तरीके से हमें पढ़ाया गया, जरूरी नहीं कि वो हमारे बच्चे जो हमारे सामने हैं आज 21st सेंचुरी में, दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड विद द सेम एटीट्यूड, विद द सेम प्रोजेक्ट्स, विद द सेम लर्निंग स्टाइल्स। किस तरीके से हम उनको बताना और पढ़ाना चाहते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें 20th सेंचुरी में किस तरह का वो होता था, टीचिंग होती थी, और 21st सेंचुरी में किस तरह की टीचिंग होती है। एक और चीज समझ लें यहाँ पर कि टीचिंग एंड लर्निंग दे गो हैंड्स इन हैंड्स, एक साथ चलते हैं। जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम सीख भी रहे होते हैं और सिखा भी रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी चीज का, तो ये हमें इसको देखना पड़ेगा। अनदर थिंग कि ये टीचर डायरेक्टेड होती थी पहले। टीचर इज ऑल इन ऑल, वो जग है जो मग में पोर करता है तमाम की तमाम चीजें, और उसके बाद वो हमें बता रहा होता है, कि समझा रहा होता है, दिखा रहा होता है, बता रहा होता है, सोचने का भी बताता है कि सोचना क्या है। 21st सेंचुरी में लर्नर सेंटर्ड हो गया है। अगर आपने कभी गूगल कीजिएगा, आप तो सारे गूगल वाले लोग हैं, जरूर उसमें देखिएगा स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम कैसे होते हैं, उसकी टीचिंग कैसे। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती है, हर चीज को मैंने कहा है अब कर लो, जबकि यहाँ पर 21st सेंचुरी में हमारा जो चेंज ऑफ स्टाइल होना चाहिए वो कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शन चाहिए। ठीक है, नॉलेज शेयरिंग होती है, जबकि यहाँ पर स्किल्स शेयरिंग होती है। अब ये देखिए ना कि पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है, अब डिग्री इज नॉट एनफ, स्किल्स आर एनफ। तो स्किल्स जो है वो उनको हमें एक्वायर करना है और करवाना भी है। स्किल्स कंटेंट बेस्ड होता है 20th सेंचुरी में, हमने उस किताब को पूरा का पूरा पढ़ाना है, जबकि यहाँ पर प्रोसेस, हाउ एम आई गोइंग टू डू। ठीक है, पहले कंटेंट बेस्ड का एक मिसाल छोटी सी बता देती हूँ, जैसे कि एवापोरेशन है या वाटर साइकिल का हम बता रहे थे, उसमें हम एक तस्वीर बना के और वो उसको दिखा के बता देते थे कि एक एवापोरेशन होता है, एक कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, फिर वो उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, वो किस तरह पहुंच। ये कंटेंट पूरा हमने पढ़ा दिया, एक तस्वीर भी अच्छे से दिखा दी और बनवा दी। लेकिन अब जो 21st सेंचुरी के बच्चे हैं उनको हमें पूरा प्रोसेस बताना पड़ता है, और हम उनको बता देंगे तो उनके लिए फायदेमंद है कि पूरा प्रोसेस हम उनको ऑपरेशन का दिखाते हैं, बताते हैं, फिर उसको ढक्कन के ऊपर जमा करके कंडेंस होना सिखाते हैं और बताते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है कि हम उसको उस प्रोसेस को बताते हैं कि प्रेसिपिटेशन किस तरह होती है, वो ड्रॉपलेट जो है वो किस तरह टपक के गिरते हैं, और हम उसको बताते हैं कि रेनफॉल किस तरह होती है। ये एक सिंपल एग्जांपल है प्रोसेस की। ये पूरा प्रोसेस बताया जाता है बच्चों को, या तो सिमुलेशन दिखाई जाती है, कोई हम एनिमेटेड वीडियो दिखा देते हैं, या उनको प्रोसेस करके बताते हैं। ये करिकुलम बेस्ड होता था, अब लाइफ स्किल्स हमको सिखा रहे होते हैं। इंडिविजुअल बेस्ड होता था, अब ग्रुप वर्किंग होती है। पहले ग्रुप वर्किंग का तस्वुर भी नहीं था, हर बच्चा अलग अलग कर रहा होता था। क्लासरूम में होता है, और अब जो है वो ग्लोबल कम्युनिटी को हमने ज्वाइन किया हुआ है। अभी जो इंटरनेट के बच्चे हैं, और खास तौर पे थैंक यू टू कोविड, कि कोविड ने तो हमें इतनी ज्यादा, जो बहुत सारी बुराइयां भी थी उसके अंदर, लेकिन कुछ हर शहर में कोई खैर होती है, तो वो खैर ये थी कि हमने क्या किया था, तो हम क्या करते हैं, समवन इज सेइंग दैट अलाउ पीपल, तो प्लीज ओपन कर दीजिएगा।
ओके, तो हम क्या आपके करते हैं, पास देखिए कंट्रोल है, आप चूंकि होस्ट हैं इसलिए आपके पास कंट्रोल है इसका कि इनको अलाउ करें। आई थिंक मैनी पीपल आर यस, वेटिंग। एडमिट ऑल मैंने कर दिया है उसको ना, एडमिट ऑल कर दिया, ठीक है, ठीक है। ओके कंटिन्यू। यस अब हमारे पास सिर्फ में म्यूट ऑल का मुझे नहीं मिल रहा इस वक्त एट प्रेजेंट, तो मैंने म्यूट ऑल नहीं किया है। पीपल दोज हु आर ज्वाइनिंग प्लीज म्यूट योर माइक्स। अच्छा, अब इसमें हमारा क्या है कि हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि लाइफ स्किल्स हम सिखा रहे हैं, तो इंडिविजुअल होता था 20वीं सेंचुरी में, अब ग्रुप वर्क होता है, क्लासरूम में था, अब ग्लोबल कम्युनिटी के साथ हम बात करते हैं। हम कोविड की बात कर रहे थे, उसमें हमने ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग का भी एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे स्कूलों में नहीं था, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया और किया, ग्लोबल कम्युनिटी से हम कनेक्टेड हो गए। एडिट कर दिया है मैंने, ऑल द पीपल, दिस इज वन ऑफ, यस। उसके बाद हम क्या करते हैं कि समेटिव असेसमेंट हम लेते हैं, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन कर रहे होते हैं। इसमें क्या है कि समेटिव असेसमेंट कौन से हैं, टेस्ट, एग्जाम और सारी चीजें जो होती हैं वो हम क्या कर रहे होते हैं कि फॉर्मेटिव जब हम कर रहे होते हैं, फॉर्मेटिव जो है वो हमारी क्या होती है कि हम उसको बहुत कई तरीकों से ले रहे होते हैं। इसके लिए हम, और वो कोर्स है हमारा जो कि फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए इसको करना कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट चूंकि आप कर रहे होंगे, हो सकता है आपको सिर्फ एक वाव आएगा, बल्ब लाइट मोमेंट होगा कि जी मुझे तो, मैं तो ये कर रही थी लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इसका नाम क्या है, ठीक है। लर्निंग फॉर स्कूल वो क्या करते थे कि सिर्फ हम स्कूल के लिए उनको पढ़ना, याद करना, इम्तहान देना, पास होना, अच्छे ग्रेड्स लाना। अब क्या है हमारा कि हम क्या करते हैं कि उनको लर्निंग फॉर लाइफ सिखाते हैं। जो भी स्कूल या जो भी क्लास या जो भी टीचर जो 21st सेंचुरी में है, उसको बच्चों को कम्युनिटी शेयरिंग की भी चीजें सिखानी है और वो सिखाते हैं। पहले कॉम्पिटिटिव होती थी, सारा कंपटीशन कर रहे होते थे एक दूसरे को, जो है वो कंपटीशन कोई पॉजिटिव वर्ड है लेकिन हम उसको नेगेटिव बना लेते थे कि हम उसको खासतौर पे उन लोगों को एक दूसरे को पीछे घसीटने की कोशिश करते थे। जबकि कोलैबोरेटिव हो चुका है, ये हमारी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट 21st सेंचुरी स्किल है जो कोलैबोरेशन है, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि टेक्स्ट बेस्ड होता था, अब ये वेब बेस्ड है। तो ये हमारा हमारा जरूरी है कि हम इन चीजों को देख लें। ये हम देखते हैं 4 C's, देयर आर सो मेनी C's, देयर आर सो मेनी टाइप्स, देयर आर सो मेनी क्राइटेरिया, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 4 C's को यहाँ पर देखते हैं। चूंकि ये हमारा फर्स्ट लेसन है तो हम इस पे देखते हैं कि हम 4 जो 21st सेंचुरी स्किल्स के 4 C's हैं, ठीक है, उनको हम कैसे देखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है क्रिटिक नहीं, क्रिटिकल, और इसमें सारे आ जाते हैं WH क्वेश्चन और HOW क्वेश्चन, ठीक है। क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिविटी का ये होता है कि आउटसाइड ऑफ द बॉक्स हम सोचते हैं कि जो चीजें मौजूद हैं उनसे हम कोई नई चीज बना देते हैं। कोलैबोरेशन, जैसा कि हमने देख लिया कि कोलैबोरेशन कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन है मिलकर काम करना है, वर्किंग विद अदर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कम से कम, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये कि पाकिस्तानी जो है वो बहुत कम कोलैबोरेट करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में ये बहुत आसानी से किया जाता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन, वेरी क्लियर मैसेज टू बी गिवन, वेरी क्लियर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन 2 वे होता है, सुनना और बताना, और ये आइडियाज जो हम कन्वे कर रहे होते हैं क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, हमें खुद क्लियर होना चाहिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये हमारी चीजें आ गई हैं 4 C's, याद रहेंगी इंशाल्लाह। रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस एंड, ठीक है। ये हमारा जो पजल है, पजल हमारी लर्निंग का है, टीचिंग एंड लर्निंग का, वो उस वक्त कंप्लीट होता है जब ये चारों चीजें हमारी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती हैं। ये है हमारी कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन वर्क्स अ लॉट। हम इसको देखते हैं, एक कॉल का जो है वो मेथड है, और ये एक स्कूल है जिसका उन्होंने ये बताया कि वही वाली चीज है, लेकिन थोड़ा सा इसका, अब आप ये सोचोगे कि ये तो मिस टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमें इस तरह के ऑर्गेनाइजर में क्यों दिखा रही है। ये जो सीइंग इज बिलीविंग होता है, और आपका जो आजकल ये होता है, इसमें क्या बात होती है कि जो इन्फोग्राफिक्स हैं, जो इस तरह के ग्राफिक्स हैं, वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह याद रहते हैं इंसान। तो ये बहुत अच्छा हो जाता है हमारे लिए कि हम अगर इन चीजों को हम शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है हमारी
कि हम ये चीजें जो है ना वो बहुत आसान है। मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ ये किया है बिकॉज आई हैव माय एक्सपीरियंस ऑफ 37 years ऑफ टीचिंग एंड इन द एजुकेशन। तो आप ये सोचिए कि बच्चों को इतनी आसानी से याद हो जाता है। तो 4 चीज ऑफ एजुकेशन में जो हम लेकर आते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सब चीजें हमारी हमारी उसके अंदर मौजूद होती है और हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोगों ने इसको लिस्ट डाउन करना है और इसको प्रैक्टिस करना है अपनी जिंदगी में, अपनी क्लास में। जो 4 चीजें हमारी, वही उसका दूसरा इन्फोग्राफिक्स मैंने लिया है कि आपकी कम्युनिकेशन है, आप जब बात करते हैं तो क्लियर होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, बहुत ड्रैगिंग नहीं होनी चाहिए और उसी लैंग्वेज में होनी चाहिए जो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। यानी हम किसी भी बड़े एडल्ट्स के साथ जो बात करते हैं और जो छोटे बच्चों के साथ बात करते हैं, प्री स्कूलर्स के साथ बात करते हैं या समझाते हैं या बताते हैं या एक्सप्लेन करते हैं या डिस्कस करते हैं, वो सारी चीजें उनकी एज के हिसाब से होनी चाहिए। हमारी जो एक्टिविटीज है वो भी एज के हिसाब से होनी चाहिए। कोलैबोरेशन में ये होता है कि हम मिलकर काम करते हैं। अच्छा, एक इसमें एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रोजेक्ट मेकिंग है जो आप लोग बनवाते हैं, हर टीचर बनवा रहा होता है अपनी क्लास में, अपने स्कूल में, कम से कम एक टर्म में एक दफा तो जरूर प्रोजेक्ट अपने सब्जेक्ट का बना रहा होता है। वो है कोलैबोरेशन की एक बहुत ही आला मिसाल, जो सब मिलकर काम कर रहे होते हैं। लेकिन अब हमने उसको क्लासरूम में भी लेकर आना है कि कोलैबोरेशन के साथ काम किया जाए। इसके बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जब हम स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम और ये सारी चीजों का सेशन मेरा मेरा आएगा तो मैं आपको इंशाल्लाह जरूर उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रिएटिविटी है कि विद अवेलेबल आइटम्स, विद द अवेलेबल थिंग्स, हम क्या करेंगे कि हमने नई चीज बनानी है। तो क्रिएटिविटी कहलाती है वो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। देखिए, वो इनोवेशन कहलाती है जो हम बिल्कुल एक नई चीज बना लेते हैं। ठीक है। और एक चीज होती है कि जैसे हमने सारी सारी फिगर ऑफ स्पीच बता दी इंग्लिश टीचर ने, और उसके बाद वो या हाइको पढ़ा दिया या एक्रोस्टिक पोएम पढ़ा दी या कोई ऐसी चीज पढ़ा दी, उसका क्या आप खुद बना कर लाइए, खुद लिख कर लाइए। तो वो लिख कर लेकर आता है, ये क्रिएटिविटी है उसकी। लेकिन क्रिएटिविटी का एक और लेवल भी ये होता है कि बिल्कुल एक नई चीज बना ली जाए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे कराची यूनिवर्सिटी में थे, तो बराबर में एनईडी यूनिवर्सिटी था, तो वहां पे उन्होंने सोलर पावर्ड कार बनाई थी। तो उस वक्त तो तसव्वुर भी नहीं था, एक जनरल बात नहीं थी कि सोलर पावर्ड कार जो है वो बनाई जा सके। बहुत छोटी सी, बहुत रफ सी उन्होंने बनाई थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने बनाई थी। तो वो क्रिएटिविटी थी कि उस वक्त कहीं उन्होंने देखा भी नहीं था, फिर भी उन्होंने नई चीज। और आजकल जो ये हमारे डिफरेंट BScs कर रहे हैं या दूसरे जो भी कोई BBA कर रहे हैं, उनको एक नई चीज बनाने को दी जाती है विद अवेलेबल मटीरियल एंड अवेलेबल नॉलेज। ठीक है। लेकिन बहरहाल कोई ऐसी चीज भी बनाई जा सकती है जो बिल्कुल ही नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग में मैंने आपको बताया, क्या बताया, WH क्वेश्चन सारे और HOW क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग हम करें, तब हम किसी प्रॉब्लम की सॉल्विंग पर या उसके सोल्यूशन पर पहुंचते हैं। हमें इन चारों C's को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि हम एक इफेक्टिव टीचर हो 21st सेंचुरी। अब हम आ जाते हैं, एजुकेटर जो है वो टीचर को ही कहा जाता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जो आज के दौर का। और इसमें से आई एश्योर यू ऑल कि आप लोग सब में ये चीज मौजूद होगी। सिर्फ ऐसा कैसे होगा कि आपने उसको डायग्नोस नहीं किया कि ये इसका नाम क्या है, ये आपको नहीं पता होगा। ठीक है। तो अब आप इसका नाम भी पता कर लीजिए, उसका टर्म भी पता कर लीजिए, उसका फ्रेज भी पता कर लीजिए और उसके साथ साथ आप काम कीजिए। अब ये है कि अगर अगर इसको मैं देख रही हूँ कि बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है, तो अगर इसको रिविजिट करना पड़ेगा और उसको दोबारा से करना पड़ेगा, तो मैं वो भी कर दूंगी। बिकॉज मेरे जो अब जो मेरी जिंदगी का मकसद है वो है शेयरिंग विद एवरीवन। जो मैं सीख चुकी हूँ, जो मैंने एक्वायर की अपनी स्किल्स एंड नॉलेज, वो मैं सारे सारे शेयर करना चाहती हूँ लोगों के साथ, और इसीलिए हम आज यहाँ पर एक साथ बैठे। ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें इस पे काम करना पड़ेगा कि ये एडमिट ऑल वाला और इसका, इन चीजों के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो ये इंशाल्लाह उसको कर लेंगे। 21st सेंचुरी एजुकेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि वो क्या होता है, एडॉप्टर होता है। अब इसमें आप 3 लफ्ज समझ लीजिए कि एडेप्ट करना और एडॉप्ट करना और एडेप्ट करना। एडेप्ट करना होता है उसको चेंज करना अपने कल्चर के हिसाब से, अपने दीन के हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से कि किस जगह हम रहते हैं, उस हिसाब से हम एडेप्ट करते हैं चीजों को। तो एडेप्ट करके और चीजों को, जैसे कि आप इंग्लिश टीचर आपकी है, कोई एक अनसीन पैराग्राफ देती है, तो कहीं से उठाती है, किसी बुक से, किसी नेट के किसी वेबसाइट से, किसी जगह से, लेकिन फिर उसको एडेप्ट करती है अपने 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 बच्चों के हिसाब से, अपने स्कूल के हिसाब से, अपने अथॉरिटीज के हिसाब से। तो वो इसको एडेप्टर कहते हैं। ठीक है। एक एडेप्टर होता है ना, याद है, वो हमारे उसमें लगा हुआ होता है, ACDC वाला एडेप्टर होता है। तो वो एडेप्टर बन जाती है टीचर। ठीक है, चेंजिंग के साथ। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, एक थोड़ा सा मुझे वो दीजिएगा कि आप लोग रेज योर हैंड्स, आता है हैंड रेज करना, मुझे बताएं कि एडेप्टर और ये 21st सेंचुरी एजुकेटर का आपको समझ आ रहा है? जी, माशाल्लाह माशाल्लाह।
ठीक है, ठीक ठीक है, आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द स्किल दैट वी नीड टू अडॉप्ट एंड डू, एंड दैट इज माशाल्लाह, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अब ये देखिए कि कम्युनिकेशन जो है वो हमारी एज अप्रोप्रिएटनेस के साथ होनी चाहिए कि हम किन लोगों से बात कर रहे हैं। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो ये फ्रेजल लैंग्वेज है या जो भी चीज है वो लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ये भी बहुत जरूरी चीज है, और क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। इसमें मैं आपको एक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बताती हूँ, उनकी सीरत से मैंने पढ़ा है कि वो जब बात करते थे तो एक तो ये कि बिल्कुल आमने सामने बात करते थे, सामने होकर बात करते थे। दूसरा ये कि उनको इतनी इतनी क्लैरिटी के साथ बात करते थे कि अल्फाज गिन लिए जा सकते। खैर अब जाहिर है कि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है, तो हम बिल्कुल गिनने वाले बात तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारा क्लियर होना चाहिए। हर टीचर को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए टू द स्टूडेंट्स, और अगर कोई चीज एम्फेसाइज करने वाले उसको 2 से 3 दफा बोला जाए। ये भी आप दिल में नियत कर लें कि सुन्नत पर अमल कर रही हो, जब भी कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती 3 दफा मांगने की का हुक्म। वो लर्नर होती है, जो भी एजुकेटर होता है, जो टीचर होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक में ये मौजूद होता है कि वो लर्नर होगी। लर्निंग जहां हमने स्टॉप किया, आज आप लोग सारे के सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप ये सोचिए कि आप लर्न करने के लिए बैठे हुए हैं ना। आपने अपना उससे वक्त निकाला है, आप यहाँ पहुंचे हैं, आपने बात की, आप देख रहे हैं, आपने अपना अपने अपने आपको तैयार किया कि मैंने तो ये आज पढ़ना है, ठीक है। तो ये है लर्नर का एटीट्यूड। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए फॉर एनी रीजन, एक जगह ने मुझे दिया है कि उनके पास लाइट नहीं है या वो, तो वो ऐसा है कि वो कोई किसी वजह से रुक गए, लेकिन लर्नर तो हैं, उन्होंने कोशिश तो की है कि हम इसको वो कर सके। एक चीज जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ बताना चाह रही हूँ, इन द मीन टाइम हम क्या करेंगे कि म्यूट ऑल भी कर लेंगे और उसको वो भी कर लेंगे। 10 मिनट के बाद जो हमारा टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा। चूंकि मैंने इसका प्रो नहीं लिया हुआ है, तो इस वजह से 40 मिनट्स का अलाउ करता है वो हमें जूम मीटिंग। तो उसके बाद आपने रीजॉइन करना होगा, और इन द मीन टाइम जो है वो जो अथॉरिटीज हैं तालीम की, उनको मैं कहूंगी कि वो म्यूट ऑल भी कर दें एक्सेप्ट फॉर मी। और दूसरा ये कि उनको एडमिट ऑल वाला भी वेटिंग रूम को रिमूव कर दें, ताकि ये सारे के सारे जो लोग अभी वेटिंग रूम में हैं वो, उनको मुझे हर दफा देखना पड़ता है, हर दफा वो करना है, तो उससे थोड़ी सी मेरी कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा हमारा, और ये 9 मिनट्स के बाद खत्म हो जाएगा टाइम, तो आपने रीजॉइन करना है, ठीक है। टेक 2 मिनट्स इन बिटवीन और आप रीजॉइन कर दीजिएगा, और 1 मिनट रह जाएगा तभी मैं आपको रिमाइंडर दूँ। तो लर्नर हैं, हम सब लर्नर हैं। मैं खुद अभी भी अगर कोई वेबिनार होता है या कुछ, जैसे चैट जीपीटी आया, एआई आया, इन सारी चीजों को इन एजुकेशन वो सारे मैं अटेंड कर रही हूँ, इसलिए कि कोई वक्त ऐसा नहीं है जहां बहुत सी ऐसी चीजें नहीं हो जो हमें मालूम नहीं है। तो कभी भी वो स्टैग्नेंट मत होइएगा, कभी भी। जब आप 21st सेंचुरी के लर्नर बन के हमेशा रहिएगा, तो इंशाल्लाह हमेशा सक्सेस आपका आपके कदम चूमे। विजनरी होना चाहिए कि आपको आगे देखना चाहिए। बच्चे जो है वो आजकल बहुत स्मार्ट हैं। यहाँ पे मैं ये बात बताना चाहूंगी कि हम लोग डिजिटली इमिग्रेंट हैं। हमने टाइपराइटर से शुरू करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि हम लैपटॉप पर और स्मार्टफोन पर काम कर रहे हैं। जबकि जो आज के बच्चे हैं वो सारे के सारे, वो बच्चे जो हैं वो सब के सब हमारे वो डिजिटली नेटिव हैं। एक 6 महीने का बच्चा भी जानता है स्क्रॉल करना और चीजों को करना, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को समझें। हमें विजनरी होना पड़ेगा कि हमें देखना पड़ेगा कि हम इनसे ज्यादा स्मार्ट रहें। लीडर है, लीडर की क्वालिटीज जरा से पता करें। टीचर एज लीडर, हम तो एक कोर्स भी करवाते हैं इसका, टीचर एज लीडर। जो टीचर के अंदर ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वो अपने अंदर लेकर आती है, टीचर जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आती है, तो ये वो लीडर का काम करती है। जिनको आवाज नहीं आ रही वो अपना माइक सेट करें, क्योंकि मुझे फौरन पता चल जाएगा कि आवाज नहीं आ रही, ठीक है। मॉडल देखिए, रोल मॉडल तो हम एज मदर्स हैं, हम एज फादर्स हैं, हम एज ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हम क्लासरूम में भी रोल मॉडल हैं। अब ये कि हमें आज के टीचर्स को ये बहुत सोचने की जरूरत है कि क्या हम वाकई रोल मॉडल हैं इन बच्चों के लिए। तो मॉडलिंग भी हमने करनी है, वो वाली मॉडलिंग नहीं, मॉडलिंग करनी है रोल मॉडल,
ठीक है। कोलैबोरेटर है यानी चीजों को, मुख्तलिफ चीजों को एक साथ जमा करके और उसके साथ काम करते हैं। हम दूसरों के साथ कोलैबोरेट भी करते हैं, और उसके कोलैबोरेशन तो एक आपको पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो 4 C's, जो बुनियादी बेसिक जो 4 C's आज हम देख रहे हैं उनमें ये शामिल। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज नो वन इन द वेटिंग। रिस्क टेकर होती है, रिस्क टेकर होती हैं जो एजुकेटर्स होते हैं। आई डोंट नो, मुज़ाहिर है कि मैं खुद फीमेल हूँ इसलिए ज्यादातर फीमेल के तौर पर बात कर रही होती हूँ, लेकिन टीचर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे रिस्क टेकर होते हैं। और खास तौर पे अब रिस्क क्या है, मैंने कोई एक्टिविटी ऐसी डिजाइन की जो मैंने पहले नहीं की, तो रिस्क ही ले रही हूँ मैं कि वो फ्लॉप होगी या सक्सेसफुल होगी। तो रिस्क टेकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अडेप्टर होती हैं, चेंज करते हैं चीजों को और उनको फिर अडॉप्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेटर होता है 21st सेंचुरी का जो टीचर है, वो लर्नर होता है, वो सीखता भी है, साथ के साथ वो सीख रहा होता है। आप सब इसकी मिसाल मौजूद है। विजनरी होता है, अपने अपने कैनवस को बड़ा करता है, बिग पिक्चर देख रहा होता है। ठीक है। और लीडर होता है, लीड करता है अपने उसको। पॉलिटिकल लीडर को मत समझिए, लीडर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि वो किस तरह के लीडर थे। हमें ये देखना होगा कि वो किस तरह के लीडर थे और उसी तरह हमने काम करना है। इसीलिए हम सीरत को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमने रोल मॉडलिंग करनी है बच्चों के साथ। अच्छा, उसके बाद हमारा हमारा क्या है कि हम जो है वो कोलैबोरेटर हों, कि कोलैबोरेशन के साथ काम करें, मिलकर काम करें, और हमारा कोई ना कोई इवेंट पार्टनर भी होना चाहिए अपने ही कॉलीग्स में से, मगर ट्रस्टवर्दी हो तो अच्छा है। रिस्क टेकर होते हैं हम। रिस्क टेकर होते हैं इस हिसाब से कि हमने नई चीजें सीखनी और उसको अप्लाई करना होता है, उसके बाद उसको एनालाइज करना होता है कि मैं इसको आगे करूं या नहीं। ठीक है। वी नरी दोबारा से बता दें प्लीज। जी, किसका बता दूं, किसका दोबारा से बताऊं? वी नरी का मैम। Can't get it, I'm sorry. मैं वी नरी का दोबारा बता दें प्लीज। रिस्क टेकिंग का मैं वी नरी का दोबारा बता दें प्लीज। विजनरी की बात कर रहे हैं आई थिंक। आप चैट पे लिख दीजिए प्लीज, दैट वुड बी क्लियर टू मी। थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है आपकी आवाज में। ठीक है, आप चैट में लिख देंगे तो इंशाल्लाह मुझे पता चल जाएगा कि आप किस चीज को। विजनरी, ओके, विजनरी आप कह रहे हैं। विजनरी का मतलब होता है कि वो शख्स जो फ्यूचर में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जिसकी हो, जिसके पास अपना एक विजन हो फॉर द न्यू थिंग्स, बिग पिक्चर जो देखना जानता हो। कि मेरा बच्चा जो ग्रेड 1 में, मैं इसकी मिसाल देती हूँ आपको, एक ये कि वो ग्रेड 1 में जो बच्चा है वो अगर ग्रेड 5 में पहुंचेगा, प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में, तो उसके पास कौन सी स्किल्स और कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, उस पर वो काम करता है। मतलब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो रखता है, जो वो, उसके लिए उसको विजनरी कहा जाता है। जो बड़ी पिक्चर देख रहा होता है उसके लिए। फिर ये कि ये बच्चा जो सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेरा ग्रेड 1 का बच्चा सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, मेरा ग्रेड 2 का बच्चा, 3 का, 4 का, या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है इस वक्त, और आगे जब पढ़कर वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये सारा का सारा जो अपनी नजर में रखता है और उसी के ऊपर काम करता है, वो एक 21st सेंचुरी का विजनरी एजुकेटर होता है। ठीक है, समझ आ गई कि विजनरी वो होता है जो बहुत ही बड़े पिक्चर को देखता है कि और अब जो दुनिया है उसमें क्या बात है कि हम कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। हमने अपने बच्चों को इस चीज के लिए तैयार करना। अब जैसे आजकल पोल्यूशन पे बहुत ज्यादा बात होती है, तो क्या हम भी इस पर काम कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ 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 जो टेक्स्ट बुक है उसके साथ साथ क्या हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? क्या हम ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या हम उसको अपने बच्चों के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं? बच्चों के बात बात में हम उनको सिखा रहे हैं, हर चीज में हम सिखा रहे हैं। एंटी लिटरिंग पे हम कोई काम कर रहे हैं कि कचरा ना फैलाओ, कचरा ना जलाओ, पौधे उगाओ। बल्कि इस दफा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि उन्होंने वो किया था कि इस दफा पा नहीं छां हमने करनी है जो 14 अगस्त में। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात थी ये कि हमने वो बाजा नहीं खरीदना बल्कि हमने पौधा खरीद के लगाना है। तो क्या हम ये कंट्रीब्यूशन सिखा रहे हैं बच्चों को कि नहीं? तो विजनरी जो होगा, जो लर्नर होगा, जो सही कम्युनिकेट करता होगा, जो अडेप्टर होगा, जो रिस्क टेकर होगा, वही ये सारी चीजें कर सकेगा। ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम इन चीजों को देखें। कोलैबोरेशन हमारा थोड़ा सा, हम पाकिस्तानी जो है, हालांकि हम मुसलमान हैं, हमारी तो हर चीज सदका है। मुझे मैंने जब ये पढ़ा था कि किसी बहरे को ऊंची आवाज में बात बता देना, समझा देना सदका है, तो मैं वाकई आई वाज रियली शॉक्ड एंड
मुझे क्रीपी फीलिंग आ गई कि हमारा दीन इतना प्यारा दीन है कि जो कुछ भी हम करते हैं वो सदका है। जैसे मैं आज यहाँ बैठी हूँ आप लोगों को सिखाने और बताने के लिए, ये सदका है। आप लोग सदका जारिया बनेंगे मेरे लिए अगर आप लोगों ने इस चीज को उसी तरह लिया और उसको अपने साथ इस्तेमाल किया और उसको अप्लाई किया और अपने बच्चे जो है वो इस तरह सिखाए। ठीक है, तो ये बड़ी जरूरी बात है हमारे लिए। तो ये हमारा हो गया और हमारे पास अभी 1 मिनट का वक्त है, तो हम आगे इसको देख लेते हैं। थोड़ा वही चीजें हैं, थोड़ी सी डिफरेंट इन्फोग्राफिक में मैंने ली हुई है कि कम्युनिकेशन बहुत हमारी क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, लैंग्वेज हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारा ऑडियंस है उसको समझ में आ जाए। आमतौर पर मैं इंग्लिश में कम्प्लीटली ट्रेनिंग देती हूँ, लेकिन मैं चूंकि मैं CPD US UK वालों को कर रही होती हूँ, लेकिन आज मैंने इसलिए इसको बाइलिंगुअल रखा है कि ताकि हर तरह के लोग मेरी बात समझ सकें। कोलैबोरेशन है और सोशल स्किल्स। कोलैबोरेशन के साथ हम क्या सोशल स्किल्स सिखा रहे हैं? तो ये बात मैंने आप लोगों को बता दी कि आपने फौरन 1 मिनट अभी बाकी है, उसके बाद जैसे ही वो होता है तो आपने फौरन उसको कर लेना है, और जो अथॉरिटीज हैं आपने म्यूट ऑल कर देना है सबको, ताकि किसी को भी ये मसला खड़ा। ठीक है, सोशल स्किल्स जो है हमारी जिंदगी में रहने के तरीके, कम्युनिटी के काम करने के तरीके, इनिशिएटिव लेना, नई बात निकालना और क्रिएट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिस्क टेकिंग, ये सारी क्वालिटीज हैं 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं जो हमें अंदर आनी चाहिए। हमने आज 4 उठाई हैं, वो हम उनको देखते हैं। एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है हमारी, क्रिटिकल थिंकिंग है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को करती है हमारी, एडेप्टेबिलिटी है। ये सारी हम आगे, मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला जो इन्फोग्राफिक है ये हम आगे भी इसको लेकर चलेंगे। आज हमने उठाई है कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी। ठीक है, तो इन पर हम बात करेंगे, काम करेंगे, और इसके साथ हम क्या करेंगे, तो हम इसके साथ क्या करेंगे कि इन 4 चीजों पे काम करेंगे। परसिवरेंस होती है कि हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करें। ये नहीं कि सिर्फ हमने 14 अगस्त में एक पौधा लगा दिया, उसको सूख गया, खत्म हो गया, हमने उसके ध्यान नहीं किया। हमको ऐसी जगह लगाना है जहां मैं लगवाती हूँ तो मैं जरूर वहां पे किसी को, जो वहां का गार्ड होता है यहाँ के, तो मैं कहती हूँ इसके जरा ख्याल रखिएगा, इसको पानी देते रहिएगा, इसके जरा ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या होता है कि ये परसिवरेंस होती है। जब हम पॉल्यूशन की बात